Hello everyone, welcome to SSJB's Mentora. In this lecture, we are going to start the Z transform. In the previous lecture, we have already covered the DFT and FFT. Now, in this lecture, we will see what is the exact need of Z transform. Once we have started the DFT, we also seen what is the exact need. Because when we learn any new thing, we should understand what is the exact necessity of that. So similarly, the Z transform is for the analysis of discrete domain signals. Okay, we have discussed that DFT is used for the conversion of time domain signals to the frequency domain. For what? For the ease of understanding and ease of analysis. Similarly, now we have used the technique for the conversion from time domain to frequency domain. Now it's a time to analyze that signals or the system, whether it's a stable or not, whether it's ROC region of convergence, how it look like. All that part will be covered under the Z transform. Now, if you also heard about one term, it's a Laplace transform. It's not actually the part of this our DSP series, but we will see the Laplace transform. The Laplace transform is for what? It analyzes the continuous signals और सिस्टम whatever in the एस प्लेन का एक प्लेन होता है जिसमें हम मतलब यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूअस सिग्नल्स का एनालिसिस हम एस प्लेन में करते हैं लेकिन फॉर द डिस्क्रीट सिग्नल्स जेड ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड for the discrete signal analysis in the frequency domain. S plane will be doing analysis in the frequency domain only. Okay, and for the Z transform, what it will do? It will take the discrete signals, and it will analyze using the Z plane. Z plane. And this S plane or Z plane, we will not discuss Laplace transform in this video because it's a typical part of signals and system subject. We will be having one different video on that. But in this video, we will discuss about the Z transform, how the conversion takes place, how the analysis is there. And in the next part, we will also see the poles and zeros of that. So let's start the discussion on Z transform. This is the coordinate system and this is the typically Z plane. What we call say, it's a Z plane. Okay. So let's say I am having one point here. Z is equals to e raised to j omega. Okay. E raised to j omega. It's a any specific point I am having on this system, and this will be imaginary axis. This will be imaginary axis. Imaginary imaginary part, and this will be real part. The x-axis will be real part. Let's call it as the u, and this is v. Okay, and this point is elevated from the x-axis at some angle omega, and it is at distance r from the origin. This point z is elevated from the real axis at some angle omega, and it is at the distance r from the origin. Now there are two terms. What is the R? R will be R will be the root of squares of sum of squares of u square plus v square. Okay, this is the R. And omega is what? It's the tan inverse of, it will be v by u. It will be v divided by u. Okay, don't make mistakes in this u by v or v by u. It's a v by u, and it's u. Okay, I hope it's clear. It's u, and this is v. Okay, so r, the distance of that point from the origin is r is equals to root under root u square plus v square. Then omega, the angle at which it is elevated, it's a tan inverse of v by u. It's not generally asked, but if someone asks with the very one or two typical question, 1 or 2 mark typical question, you can solve this using this formula. Now let's see the formula for the Z transform. What is the exact formula of Z transform? तो अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो अगर देख मेरे पास एक x ऑफ n एक सिग्नल गिवन होगा, इट विल बी इन द टाइम डोमेन. Z ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, उसे Z मतलब अल्टीमेटली उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही ले जाना है. तो
एक्स ऑफ जेड क्या रहेगा मेरा, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, फॉर्मूला हमेशा जनरलाइज्ड होता है, इट्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ एन multiplied by z to the power minus n. Okay, so this is the typical formula for the z transform. Means if any x of n signal is given, its z transform will be given like that. The x of z is equals to summation from n is equals to minus infinity to infinity x of n z to the power minus n. इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इनफाइनाइट पावर सीरीज भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट इनफाइनाइट पावर पावर सीरीज भी बोलते हैं। और और एक टर्म है इससे बोलने के लिए, मतलब फॉर्मूला को नहीं, एक जनरलाइज इसको हम, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट पावर सीरीज हो गई, सम हो गया, कुछ भी हो गया। देन नेक्स्ट पार्ट, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, इट्स अ टू साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म। देख, अगर मैं एक लाइन बनाऊं, एक टाइम लाइन बनाऊं, एक टाइम लाइन मैंने बनाई, and this is the origin, let's say 0, this is minus infinity, okay, I hope ये दिख रहा होगा, this is minus infinity and at this side it's a infinity. Now this sequence is from minus infinity to infinity. Minus infinity to infinity means covering both the sides, the left part of this origin and right part of this, so we can also call it as the two sided जेड ट्रांसफॉर्म, टू साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म भी हम इसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेरा x ऑफ n से मेरा कुछ लिमिट चेंज हो गया है, लेट्स से मेरे पास एक u ऑफ n आ गया, u ऑफ n मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया, जो कि मेरा सिर्फ ओरिजिन के राइट साइड के लिए वैलिड है, फ्रॉम फ्रॉम जीरो इसी साइड में वैलिड है, मीन्स उसका लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो तब जब मेरा लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तब मैं उसे कहूंगा सिंगल साइडेड और वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से हम एक बहुत फंडामेंटल एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जो आगे बहुत हमें यूज होता है। एक बेसिक सा सीक्वेंस है, चलो वो ले लेते हैं। अगर मैंने दिया x ऑफ n इज इक्वल्स टू a रेस टू n u ऑफ n, ओके, ये मेरा गिवन क्वेश्चन है, इसका मुझे जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये बहुत फंडामेंटल है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्स ऑफ जेड का अगर मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, तो इट विल बी समेशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन। अब कुछ में मुझे इंडाइसेस की वगैरह प्रॉपर्टीज लगेगी, लेकिन आई होप वो आपको आते होगी, अगर नहीं कुछ आता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं वो पढ़ा दूंगा अलग से, ठीक है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट अलग से कुछ सीखा था, पढ़ा था। अब क्या करेंगे इसमें कि एक्स ऑफ एन डाल देते हैं, चलो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्स ऑफ एन क्या है, ए रेस टू एन यू ऑफ एन होगा और जेड टू द पावर माइनस एन होगा। अब मजेदार बात यह है कि हमारे x ऑफ n में u ऑफ n है, u ऑफ n क्या है, अभी मैंने बोला, इट्स ए यूनिट स्टेप फंक्शन, इट्स वैलिड फॉर पॉजिटिव साइड ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जीरो से आगे ही वो वैलिड रहेगा, जीरो से आगे ही वो वैलिड रहेगा, जीरो टू इनफाइनाइट, मतलब u ऑफ n का अगर तुझे फॉर्मूला पता होगा, u ऑफ n क्या होता है, इज इक्वल्स टू वन फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड इज जीरो एल्सवेयर, ये हमें पता है, इट्स ए यूनिट स्टेप फंक्शन। तो मुझे बता, अगर मैं माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन का अगर लिमिट देखूं, तो उसके लिए u ऑफ n तो जीरो रहेगा, एल्सवेयर क्या, इट्स विल बी जीरो। अल्टीमेटली मैं इसे रिफॉर्म करके क्या लिख सकता हूँ, समेशन का लिमिट में चेंज करूंगा तो जीरो से इनफाइनाइट लिखूंगा, क्यों, क्योंकि u ऑफ n जीरो टू इन जीरो मतलब जीरो से इनफाइनाइट तक ही वैलिड है, इसलिए मैं जीरो टू इनफाइनाइट लिखूंगा एंड सिंपली मेरा a ऑफ n रहेगा, u ऑफ n तो चला गया, क्योंकि u ऑफ n की वैल्यू क्या हो गई, वन, एंड अल्टीमेटली इट्स z टू द पावर माइनस। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप बोल सकते हो कि इट्स ए वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म, इसको क्या बोलेंगे हम, वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म। इसी को और थोड़ा इंडाइसेस के रूल से अगर मैनिपुलेट करें, तो जीरो टू इंफिनिटी ए और जेड इनवर्स को साथ में ले लिया,
ए और जेड इनवर्स को साथ में ले लिया तो रेस टू n आ जाएगा। ओके, तो ये इट्स अ समेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ए जेड इनवर्स रेस टू n। हमें इस अलग फॉर्म में लिखा क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, इट्स ए ज्योमेट्रिक सीरीज। आई होप ये आपको याद होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज का एक फॉर्मूला होता है, व्हाट इज समेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी c raised to n, let's say c raised to n एक सीक्वेंस है, is equals to 1 upon 1 minus c। समेशन फ्रॉम 0 टू n रहेगा, n is equals to 0 to infinity c raised to n is 1 upon 1 minus c। और c क्या होता है, c is less than 1 and greater than 0। ये होता है ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला, इट्स ए ज्योमेट्रिक सीरीज। इसी को हम इस फॉर्मूला में यूज करेंगे, और इसको थोड़ा सा अभी साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। आई होप ये सबको याद होगा, अगर नहीं है तो कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा कि अगर मैं इस वाले पार्ट को c कंसिडर करूं एज अ c रेस टू n, तो मैं इजीली लिख पाऊंगा कि समेशन समेशन c रेस टू n अगर है तो इसी को मैं रिप्लेस कर दूंगा कि 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स, 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स। और इसी को थोड़ा सा जेड इनवर्स है तो जेड, ये जेड माइनस ए हो जाएगा और जेड ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली इट्स जेड अपॉन जेड माइनस ए, जेड अपॉन जेड माइनस ये आ गया हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ जेड। ओके, लेकिन अगर हमें लिमिट देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म में जब हम सॉल्व करेंगे, तो रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस एक कंसेप्ट होता है। रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस मतलब क्या, अब देख मेरी ये जो सीरीज है ये इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन इनफाइनाइट तक अगर जा रहे हैं तो एनालिसिस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्टीज बढ़ जाएगी। तो ऐसी कुछ जेड की वैल्यूज जिस वैल्यूज से हमारी सीरीज एक फाइनाइट बनती है, और ऐसी कुछ वैल्यूज जिधर हमारी सीरीज कॉन्वर्जेंट हो जाती है, इट्स ए रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। उसी को हम बोलते हैं ROC, रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। इट्स ए रीजन, इग्नोर माय स्पेलिंग्स, रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। ओके, इट्स द वैल्यूज ऑफ z, इसी को थोड़ा हम इलोबरेट करके लिख देंगे, इट्स वैल्यूज ऑफ z ट्रांसफॉर्म, इसलिए it will depend on the अलग अलग कोई एनालिसिस रहा तो वैल्यूज ऑफ z एट विच हमारा जो ये सिग्नल है और दी व्हाट वी कैन से दी सीरीज, हाँ, वैल्यूज ऑफ z एट विच सीरीज बिकम्स कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट, और उसी को बोल सकते हैं फाइनाइट, जिधर हमारी सीरीज फाइनाइट हो जाती है, एंड होती है, क्योंकि एंड करना जरूरी है एनालिसिस के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर इसमें इस एग्जांपल में देखें व्हाट इज द ROC, तो ROC हमें पता चलेगा इस लिमिट से। अब देख ज्योमेट्रिक सीरीज क्या बोल रही है कि जीरो, ये जो मॉड सी है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ वैल्यूज, वो जैसे एग्जांपल आएंगे वैसे हम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इधर सिर्फ फॉर्मूला वाइज देख लेते हैं कि ये वाला पार्ट है ना, अब इसमें लगाएंगे कि ये क्या बोल रहा है कि सी जो है, सी क्या है हमारा, अब ए जेड इनवर्स इट्स लेस देन 1, फिलहाल जीरो का छोड़, नहीं तो चल लिख लेते लेस देन 1। अब इस वाले पार्ट को अगर हम कंसिडर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास कि z इधर चला जाएगा, a है ऐसे, और इट्स लेस देन z। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर द गिवन सीक्वेंस x ऑफ n इज इक्वल्स टू a रेज टू n u ऑफ n, x ऑफ z इज z अपॉन z माइनस a, एंड इट्स ROC इज रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस इज z is greater than a, z is greater than a. This is the ROC, region of convergence of this given example। तो अभी हमने देखा कि कैसे एक आधा एग्जाम्पल को हम z ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करेंगे। दिस इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन एग्जाम्पल, एंड ऑल्सो सी हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द ROC।
अब ये जो है स्टैंडर्ड एग्जांपल है, तो ये सीधा लर्न ही कर लेंगे कि अगर मेरे पास a रेज़ टू n u ऑफ n टाइप ऑफ सिग्नल आया, तो उसका जो z ट्रांसफॉर्म रहेगा, इट विल बी z अपॉन z माइनस a एंड इट्स ROC विल बी z ग्रेटर देन a। ये मॉड वाली साइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव वाला पार्ट है तो उसमें कंसिडर होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। ROC नहीं तो गलत हो जाएगा। और एक पार्ट हमारा जो रह गया है आरओसी में, अगर डिस्कस करें तो अगर हमने डिस्कस किया इट्स वैल्यूज ऑफ z एट विच द सीरीज और दैट सीक्वेंस बिकम कन्वर्जेंट। अगर हमने कहा कि z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू, इट्स ग्रेटर देन a, उसके लिए एक सर्कल बनता है, इट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का वो सर्कल होता है। वो अगर देखे तो वो कुछ ऐसे बनता है। ओके, इफ दिस इज द सर्कल, स्पेसिफिक सर्कल, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह ऐसे रहेंगे। ओके, दिस इज द ओरिजिन and if z is greater than a, okay, and let us suppose this is the a, this is the a value, let's say 5 or 10 whatever, the z greater than a means all the values which are greater than a, this is the region of convergence. For that, this is the region of convergence, this is the ROC for this specific example. Okay, and this is the value of a. Okay, so if I get this z greater than 5 or greater than 10, then I must relate with this example that if this is the a, the ROC will be out of that circle, out of that specific value. This is the circle with value a, this will be also having minus a, or this means it is having the distance of a units from the origin. Simply you can draw this in the descriptive example while solving it mathematically. At the end we need to draw this circle if it's necessary, otherwise you can simply write this z greater than a. तो अब हम देखते हैं कि इससे ही नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन द स्टेबिलिटी, बिकॉज इससे ही आगे आएंगे पोल्स और जीरोस, और पोल्स और जीरोस हमें बताएंगे वेदर आवर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। तो अभी रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दी पोल्स एंड जीरोस ऑफ दिस जेड ट्रांसफॉर्म। थैंक यू।